تو آپ کرو گے کیا؟ ارے جب ہم صحیح العقیدہ تو ہم کیوں کریں؟ آپ نے تو بد عقیدوں کو کہا نا، دیوبندیوں کو، غیر مقلدوں کو بھی کہا ہے. تو غیر مقلد تو کوئی بھی ہو سکتا نا، مقلد بھی ہوتا ہے غیر مقلد. ہاں تو آپ کو کرنا ہے یا نہیں؟ نہیں تو ہم تو صحیح العقیدہ ہے نا، آپ نے تو بد عقیدوں کو کہا نا. اہل حدیث کا تو نام ہی نہیں لکھا، تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ جب نام نہیں لکھا، دعوت نہیں دی، زبردستی کیسے آ جائیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، ہم مفتی صاحب سے بات چیت کر کے جی مفتی صاحب بول دیں کہ بات کرتا ہوں ہوتے ہیں نا، تو بریلوی بھی غیر مقلد ہوتا ہے. وہ جو قدم سے قدم پھیلاتا نہیں ہے نا اس میں نماز میں، اور پیر پھیلا کے کھڑے رکھتا ہے، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ کسی کی تقلید میں نہیں کرتا، خود ہی کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، غیر مقلد ہے وہاں وہ. ہاں تو مطلب جیسے تم لوگ کرتے ہو، تمہاری بھی حالت بتاتے ہیں. نہیں، ہمارے تو حدیث ہے بخاری کی، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملاؤ. ہاں تو تمہاری یہ جہالت بخاری کی حدیث ہے. توبہ توبہ توبہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسے جہالت بول رہے ہو آپ؟ نعوذ باللہ. میری مکاری مطلب میری بات سن تو پہلے، تمہارے مولوی عمران جو ہے اس نے انڈے کی قربانی کو جائز تھا، تو اس میٹر پہ تم کیا؟ نہیں، کہیں نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا انڈے کی قربانی جائز ہے. میرے پاس آڈیو کی موجود ہے، جھوٹ بات ہے نا. اور ہمارا مذہب کوئی مقلد والا تھوڑی ہے کہ کوئی کچھ بھی بولتے مذہب بن جائے. جب ہم نے مانے نہیں تو آپ نے سوال کیسے کر سکتے؟ ہم تو وہ بات بولیں گے جو آپ مانتے ہو. ہم کسی کا فتویٰ اٹھا کے آپ کو نہیں بتاتے. آپ نے کال، ارے آپ کی کتاب میں امام ابو حنیفہ کو نبی بتایا گیا، تو ہم آپ سے سوال کریں کہ آپ نبی مانتے امام ابو حنیفہ کو؟ نہیں، جب آپ کو مناظرہ نہیں کیا. نہیں، میں مبارکباد دینے کے لیے کیا. نہیں، لوگ کیا سمجھ رہے تھے نا، اہل حدیث کو بھی چیلنج ہے، تو میں نے بتایا لوگوں کو بھائی اس میں اہل حدیث کا نام نہیں ہے. اہل حدیث کہیں نہیں، اہل سنت مطلب اہل حدیث، سنت کا نام ہی حدیث ہوتا ہے. تو اہل سنت بولے تو اہل حدیث ہو جاتا ہے. تو اہل حدیث، اہل سنت صحیح العقیدہ ہے. تو بریلویوں نے اہل حدیث کو نہیں، میں لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا. میں مبارکباد کے لیے فون کیا آپ کو. آج آپ چھوڑنا مت دیوبندیوں کو، اچھے سے مناظرہ کرنا ایک دم. نہیں، ہم تو الحمد للہ ہم تو بریلوی، ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے. ارے بریلویوں کو میں چھوڑا، بریلویوں میں بھی دو فرقے ہو گئے. ایک وہ طاہر القادری کا ہو گیا جس کو بریلوی کافر بولتے ہیں، اور طاہر القادری دوسرے بریلویوں کو کافر بولتا ہے. نہیں، وہ جیسا ابھی وہ اچھے درگاہ پہ طاہر القادری آیا تھا تو اس کو مارے تھے نا بریلویوں نے. تو بریلویوں میں دو عقیدوں کو، ان کو بھی چیلنج کرو مناظرے کا. ہاں، بریلی میں دو نہیں چار ہو گئے. یہ ہری پگڑی والے، سفید پگڑی. ہاں نہیں، وہ ہری پگڑی تو قادیانیوں کی سنت ہے، قادیانی پہنتا تھا ہری پگڑی. بالکل، ان کو بھی مت چھوڑو، ان سے بھی مناظرہ کرو. ہم نے تو ان کو بھی چیلنج کیا، ہم تو کرتے رہتے ہیں. وہ تو الحمد للہ عادت ہی پڑ گئی ہے ہم لوگوں کو. جی ماشاء اللہ. نہیں، کر کے بتانا، صرف لکھ دینے سے الگ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی تک کہیں ہو ہی نہیں نا. آپ آئیے نا پروگرام میں. میرے کو آنے کے ویڈیو آڈیو نہیں بنتی. نہیں، ہمارے مسلک میں ویڈیو حرام ہے. ہم لوگ ویڈیو سے پرہیز کرتے، اور ہمارے اسٹیٹ پہ یہ اعلان ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص ویڈیو نہ بنائے، کیونکہ ہمارے امام احمد رضا فاطر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ویڈیو بنانے والا جو حرام کام کرنے والا ہے وہ پھانسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. الحمد للہ ہم بریلوی سچے پکے جو مسلک اعلی حضرت کو ماننے والے، ہمارے پروگرام میں ویڈیو نہیں ہوتی ہے. اچھا، جتنے بریلوی شادیوں میں ویڈیو بنا رہے ہیں، پروگراموں میں ویڈیو بنا رہے ہیں، تو سب حرام کام کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. بالکل اچھی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میرے سرکار نے خود فرما دی کہ ویڈیو بنانا حرام ہے. ویڈیو حرام ہے، دلیل کدھر ہے؟ کیا طریقے اٹھا لو. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے پر ہوگا. نمبر ارے تصویر بنانے والے پر ہوگا نا، ویڈیو بنانے والے پہ ہوگا. یہ کدھر ہے؟ تصویر کی ہوتی ہے نا. ارے حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی جب نکاح کر کے، تو بہت سارے کھلونے لائی تھی، گڈے گڑیا جو تصویر ہوتی ہے. ہاں، وہ گڈے ہوتے ہیں اور جاندار کی تصویر الگ ہوتی ہے نا. ارے وہ پرانے زمانے کے کھلونے تھے، پرانے زمانے میں جو ہوتے تھے نا گڈے گڑیا. کون سی حدیث ہے دلیل دے؟ پھر وہی نا یار، آپ پڑھتے نہیں ہو. پھر وہ آدھی ادھوری بات لے کے آتے دلیل دے. آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں، آپ پھر کیسے بن گئے بھائی؟ تم نے پڑھا نہیں، پہلے کسی نہیں، میں یہ جاننا چاہتا آپ فتویٰ لگاتے ہو تو تحقیق کر کے لگاتے ہو کہ بھائی ایک حدیث پڑھ کے لگا دیتے ہو؟ نہیں تو بھائی جیسے پھر اللہ سرکار کا فریض کی حدیث ہے، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے پر ہوگا. تصویر بنانے والے پر ہوگا نا. وہ فوٹو کھینچنے والا تصویر کدھر بنا رہا ہے؟ فوٹو بنانا، ویڈیو بنانا ایک ہی بات ہے. کیمرہ دونوں جگہ سے یوز ہوتا ہے نا. ہاں، کیمرہ تو دونوں جگہ یوز ہوتا ہے نا. جیسے ویڈیو بنائے گا تو کیمرہ یوز ہوگا. وہاں پر دیکھو کیا ہے، الفاظ کیا ہے عربی کے تصویر بنانے کے لیے؟ الفاظ بتائیں مجھے. کیونکہ آدمی صحیح معنی مفہوم الفاظ ہو کے عربی اس سے سمجھے گا. جیسے حدیث میں آیا ازراق لفظ. ازراق لفظ کا معنی ہوتا ہے پیر سے پیر کو چپکا دینا، چپکانا. تو آپ پہلے فتویٰ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، فتویٰ دیجیے، کوئی نئی بات بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا عربی تو بتائیے کہ اس سے وہ مورت بنانا مراد ہے یا فوٹو کھینچنا مراد ہے؟
बहरहाल आप प्रोग्राम में आइए, आपको पूरी तस्दीक मिल जाएगी। हाँ, तो कौन आ रहे देवबंदियों में से, कौन आ रहा है बरेली में से, कौन आ रहा है मुनाजरे के लिए? अपने शहजादा शेर सुन्नत और अल्लामा हसमत अली खान का शहजादा। नहीं, आप मुनाजरा किससे कर रहे हो? कौन आ रहा है मुनाजरे में अपोजिशन में? बरेलवियों में से अपोजिशन में कौन आ रहा है? कादियानों में से कौन आ रहा है? तबलीगी जमात में से कौन आ रहा है? अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया। नहीं आया ना, तो अगर आपको कोई दलीलों की कमी पड़े ना तो हम अहले हदीसों से ले लेना, हमारे पास बहुत दलीलें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है दलील सब। आपके पास दलील है, आप पहली दलील में हार जाओगे मुनाजरा, क्योंकि अहमद रजा खान ने मलफूजात में लेकर वहाबी और देवबंदियों से रूबरू मुनाजरा मत करो, पहली में हार देंगे तुमको मुनाजरा वो। अरे तो चलो फिर आप कर लो ना। अरे मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना मेरे भाई, आप हार नहीं जाओ, आपको मैं अहले हदीस हूँ ना, मैं सही लकीद हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना, आपकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा। अहमद रजा खान ने मलफूजात में लिखा है वहाबियों से रूबरू मुनाजरा मत करो, आप मुनाजरा हार जाओगे। आप आज रूबरू आए कैसे? आप बरेलवी रहे नहीं, अब आपको बरेलवी से इनकार करना पड़ेगा, अहमद रजा खान का इनकार करना पड़ेगा। तो मेरे सुन्नत ने फिर कैसा रूबरू मुनाजरा किए? नहीं तो भाई अहमद रजा खान को आपने सरकार माने थे ना, अभी उन्होंने क्या फतवा दिए, वीडियो बनाना हराम है, उन्होंने मुनाजरे का कहे तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके दो उसूल है क्या? जी अहमद रजा खान ने कहा वीडियो बनाना हराम है, आपने माने ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर अहमद रजा खान बोले वहाबियों और देवबंदियों से रूबरू मुनाजरा मत करो, तहरीरी करो, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके दो उसूल है क्या? तहरीरी के हमने जवाब दे दिया, हमने नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूँ, गंदुम आप जवाब दे रहे। अहमद रजा खान का ही फतवा बता रहा हूँ अल मलफूजात का कि वहाबियों और देवबंदियों से रूबरू मुनाजरा मत करो। आप कैसे कर रहे हैं? आप तो हार गए शुरू में ही, मुनाजरा शुरू होने से पहले ही। नहीं तो अगर मुनाजरे में देवबंदियों ने कादियानों ने आपको इबारत दे दिए और बोल दिए कि अहमद रजा खान के नाफरमान है, ये बरेलवी है ही नहीं, हम जीत गए, तो आप कैसे देंगे उनको? कैसे जवाब देंगे? हमारे मुकर्रिर के पास तो सभी दलील है ना। अरे फिर वो कयासी बात, अभी जवाब नहीं दे पा रहे, उस टाइम का वही नाजिल होगी। तो आप आ जाएगा, फिर आपको मेरे को जरूरत नहीं है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी भी रुजू तौबा कर लो इससे, वरना मुनाज़ा हार जाओगे। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ भाई, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अहमद रजा खान ने जो बात कही है वहाबियों से तहरीरी मुनाज़ा करो, रूबरू मत करो, तो आपको अमल करना चाहिए ना। आप वीडियो पे अमल कर रहे हो ना? जी कर रहे हो ना वीडियो वाले फतवे पे अहमद रजा खान के अमल? हम तो सभी फतवे पे अमल करते हैं। फिर अब इस पे क्यों नहीं कर रहे आप? इस पे क्यों नहीं कर रहे हो आप? वो सबसे पहले पोस्टर फाड़ो, कैंसिल करो, कहना भाई गलती हो गई, माफी मांगो, तौबा करो, नहीं तो आप मुनाज़ा शुरू होने पहले हार जाओगे। हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हार ही गए ना, अभी आपके पास जवाब नहीं बन रहा है, तो उस वक्त क्या जवाब बनेगा? अभी तक दुनिया में जो बरेलवी रूबरू मुनाज़रे का चैलेंज करे वो इमाम अहमद रजा का मानने वाला है ही नहीं, उसको पहले रद्द करना पड़ेगा इमाम अहमद रजा का, अपने इमाम का। और जो अपने इमाम का रद्द कर दे उसका मजहब ही खत्म, वो बद मजहब हो गया। तो जो फतवा आपने लिखे थे उसमें बद मजहब से मुनाजरा, तो आप बद मजहब खुद बन जाओगे वहाँ पर। नहीं बद मजहब किसे कहता नहीं है, आपको यही तो नहीं मालूम है। जो अहमद रजा खान को छोड़ दे आपको बद मजहब नहीं होता। अरे कोई बरेलवी ये बोले मैं अहमद रजा खान की बात को नहीं मानता, वो आपकी नजर में बद मजहब है कि नहीं? अरे भाई इमाम अहमद रजा आपको मानना नहीं मानना ईमान की दलील नहीं है। ईमान की दलील ये है सच्ची मोहब्बत करे, उसे कहा जाता है ईमान वाला। भाई ये ईमान की, ये मुर्जियों का ईमान है, अहले सुन्नत का ईमान तो ये कि जबान से जो बोले अमल भी करे। आप तो जो बता रहे हो मुर्जिया फिरके का ईमान है। अहले सुन्नत की वहाँ ईमान अमल दोनों एक चीज है। आपने जबान से बोला अहमद रजा खान को मानते तो उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। हम जैसे कहते अल्लाह के रसूल को हम मानते तो जो हुक्म उन्होंने हमको दिया हम उसको मानते, तो आपको दोनों चीजें करके बताना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने तमाम बदमज़हब जैसे कि फिर वही, अरे भाई मैंने आपने एक फुल बयान किया, अहमद रजा खान का आप फतवा मानते हो, अल मलफूजात का फतवा लेके देवबंदियों से वहाबियों से रूबरू मुनाजरा मत करो, तहरीरी करो। अब आप रूबरू गया, आप अहमद रजा खान का इनकार कर दिया, आपने फतवे को नहीं माना। अरे इनकार फिर इनकार किसे कहते भाई? अल्लाह इस्लाम ने मना किया शराब मत पियो, आदमी शराब पिए तो इनकार ही कर रहा है ना वो। इनकार इसे ही कहते ना, शराब हराम है। अहमद रजा खान की बात का इनकार करना और मानना हराम है या हलाल है? ये क्या बोल रहा हूँ, शराब हराम है, ये इसमें अहमद रजा साहब की बात मत करो आप। तो अहमद रजा खान साहब का फतवा आप दे रहे थे ना वीडियो बनाने पर, और आप इतना सीना ठोक के बोल रहे थे, तो मैंने एक फतवा याद दिलाया। अब ये मुनाजरा आप हार जाओगे शुरू में, और अभी हार गए शुरू होने से पहले। बोलो तो एक काम करिए ना, आप आ जाइए ना मुनाजिर में, तो पता लग जाएगा कौन आता है कौन जीतेगा। ये मुनाजिर नहीं होता ना, जो मुनाजरा आप कर रहे हो ना, ऐसा मुनाजरा फिरौन करता था। सूरह नाज़ियात कुरान में 30वें पारे में पढ़ी है 79 कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की इस्लाह करने गए तो उसने लोगों को जमा किया, माहौल गर्म किया मुनाजरे के लिए।
अहले सुन्नत अब आप भी वही कर रहे हो, माहौल गर्म कर रहे हो, लोगों को वो कर रहे हो। इस्लाह करने गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, लोगों को जब थोड़ी किया था। तो यही बता, तमाम बदमज़हबों का हम तो किताबों से रखते हैं। मतलब तो जो बदमज़हब वो तो मुनाज़रे का चैलेंज करता है, अहले सुन्नत चैलेंज नहीं करते, अहले सुन्नत इस्लाह करते हैं। कौन चैलेंज करता था मुनाज़रे का? तो फिर क्यों सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद नबी शरीफ से तमाम मुनाफिकों को मस्जिद से निकाल के फेंके? तो मुनाज़रा थोड़ी था वो। हाँ, मुनाज़रा थोड़ी था। अरे मुनाज़रा कौन चैलेंज तो भाई, आप पहले आप अहले सुन्नत के ताल्लुक से अपना अकीदा बताइए। आप बदमज़हब दिखते हैं कि अहले सुन्नत इस्लाह करते थे कि मुनाज़रा करते थे? हाँ, अहले सुन्नत इस्लाह करते थे कि मुनाज़रा करते थे? दोनों करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। जैसा काम पब्लिक को जमा करना, माहौल गर्म करना मुनाज़रे के लिए, ये कौन सा अहले सुन्नत का तरीका है? एक का नाम बताइए। हाँ, पब्लिक को गर्म करना, लोगों को जमा करना, मुनाज़रे का चैलेंज करना, ये तो कौन ने किया था? 300 जादूगरों को जमा किया उसने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए। जब आप गैर मुकल्लिद नहीं हो, जब मैं कुरान बता रहा हूँ, आप कुरान से भाग रहे भाई आप बदअकीदत तो नहीं हो। मैं कुरान बता रहा हूँ, कुरान। आप कुरान नहीं मान रहे, अहमद रजा खान के फतवे को नहीं मान रहे, कुरान को नहीं मान रहे, आप बरेलवी हो ही नहीं। आप बात घुमा रहे हो। मैं घुमाऊंगा? अस्तग़फिरुल्लाह। मैंने अहमद रजा खान का फतवा दिया, आपने उसको नहीं माने। मैंने बरेली कुरान बताया, आपने उसको नहीं माने। तो बदमज़हब कहते किसको है फिर आपके वहाँ? सिर्फ चिल्लाने वाले को, सिर्फ यानी हरी पगड़ी पहन के चिल्ला ले उसको मजहब वाला कहते हैं आपके यहाँ? बदमज़हब नहीं है आपका। आप कुरान की ये बात मानते हैं कि फिरौन ने 300 लोगों को जमा किया मुनाज़रे के लिए, माहौल गर्म किया, फहशर फनादा कुरान की आयत है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दिया, ये फिरौन की सुन्नत को मानते हैं ना? मैंने जो आप बताइए, आप फिरौन की सुन्नत में और आपके तरीके में क्या फर्क है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब गैर मुकल्लिद नहीं है, वो आप ही नहीं, बदमज़हब नहीं है, तो आपको इस बात से इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ ना भाई मेरे, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ कि देखिए कहीं गलती न हो जाए मुनाज़रे में, आपके हाथ से बाइक निकल जाएगी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिरौन की बात का जवाब नहीं दिए ना। फिरौन ने ऐसे ही किया था ना, लोगों को जमा किया, माहौल गर्म किया, मूसा अलैहिस्सलाम से मुनाज़रा किया। अब्दुल सत्तार अल्लामी साहब की बुलाए, वो भी मुनाज़िर अहले सुन्नत है हमारे पास। अरे यार, वो मुनाज़िर अहले सुन्नत बाद में होगा ना भाई। कुरान तुमको समझ में नहीं आ रहा, मुनाज़िर की बात क्या समझ में आएगी? आसान कौन सी बात है? मुनाज़िर की बात है कि कुरान आसान है? ये हम हमारे जो जितने भी मुनाज़िर अहले सुन्नत है। नहीं, पहले मुझे एक उसूल बताइए, आपकी नजर में आसान कौन सी चीज है? कुरान आसान है या आज के उलमाओं की बातें? अरे कुरान तो बेहतर आसान है, कुरान तो क्या? तो फिर आपको कुरान में समझा रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा, बोले मुनाज़िर है, तो उनकी बात कहाँ समझ में आएगी आपको? वो तो मुश्किल है, वो तो घुमा देंगे आपको। मेरी बात, अरे मेरे भाई, आप समझ रहे हैं? आप कुरान पढ़िए। आप जो अमल कर रहे हो ना, फिरौनियों वाला अमल है। थोड़ी इस्लाह करिए अपनी। अरे आप अहमद रजा खान के फतवे का इनकार कर दे रहे हैं, आप बरेलवी से खारिज हो जाएंगे, फतवा आ जाएगा आप पे। पहले सुन्नत से खारिज कर देंगे बरेलवी आपको, और वही मनाजिर साहब आपसे मुनाजरा कर लेंगे कि अहमद रजा खान फतवे का इनकार करता है, रूबरू मुनाजरा करता है। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, आपको आप जब कोई बदमज़हब नहीं है, आपके मुकल्लिद नहीं है, तो आपको इसकी पंचायत करना क्यों है? इस्लाह करना। देखिए भाई, मुसलमान का काम इस्लाह करना है हर मसले में। अल मोमिन मिरतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। हम कहीं गलती देखेंगे, इस्लाह करेंगे, आप हमारी गलती देखो, इस्लाह करो। ये अंबिया का तरीका है, सहाबा का तरीका है, अम्मा का तरीका है। मुनाजरे फुनाजरे करना ये यहूदियों का तरीका था, ये फिरौनियों का तरीका था। इस्लाह छोड़ देना, मुनाजरे करना ये मुसलमान का तरीका है ही नहीं। अच्छा है। हाँ, अल्लाह ने नबियों को भेजा इस्लाह करने के लिए, लोगों की सहाबा की जमात से इस्लाह करने के लिए, आइम्मा है इस्लाह करने के लिए। मेरी बात समझिए, इस्लाह आपके पास रखिए, जब मेरे को जरूरत लगी, जब मैं आपसे फोन लगा के इस्लाह ले लूंगा ना। नहीं, उसके लिए इस्लाह करने के लिए फोन हमको लगाए जरूरी नहीं। हमारे को पता चले भाई का अकीदा सही नहीं, हम फोन लगा देते उसको। ये भी असबाब है ना, की निशानी है ना। हमारा अकीदा सही नहीं है तो आपको जो साबित हो गया ना, आप कुरान की बात नहीं मान रहे, आप अहमद रजा खान की बात नहीं मान रहे, अकीदा कैसे सही? कुरान का दोनों आप देखे, जिनको सरकार बोले उनकी बात नहीं माने, और जिस सरकार जिससे चलते थे कुरान को उसकी बात नहीं माने, तो मैं आपको कैसे मानूं? मैंने कुरान का इनकार कब किया? ये बोलो। मान लिया ना आपने, फिरौनियों का तरीका है, जैसा आपने पोस्टर लगाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपको बात समझ में आ गई? मेरा बैलेंस खत्म होने वाला, फोन कट जाएगा शायद। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको।